Good afternoon to all. This class is for JNM Nursing first year students. The subject is Anatomy and Physiology and the topic is male reproductive system. So, male reproductive system means the organs which are male organs and essential or required for the human reproduction. These are called male reproductive system. So, male reproductive system के अंदर वो सारे ऑर्गन्स आएंगे जो कि मेल में होते हैं एंड जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सो what are the functions of this male reproductive system? फर्स्ट इज प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को एंड सीमेन को. देन to discharge the sperm within the female reproductive tract during the sexual intercourse, and then ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करना जो कि इसेंशियल हैं और जो मेंटेन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. सो देयर आर 3 फंक्शंस फॉर द प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. सेकेंड इज टू डिस्चार्ज द स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, and third is to produce and secrete the hormones. In the previous classes you have taught or the classes on the scrotum, testes, spermatic cords and the seminal vesicles have been taken place. So in this class we will learn about the ejaculatory duct, prostate gland, urethra and the penis. Now ejaculatory ducts. In this diagram you can see ejaculatory जो ducts हैं they are 2 in number and ये 2 duct से होके बनी है. एक तो seminal vesicle से और दूसरी vas deferens से. ये दोनों ducts मिलके क्या बना रही हैं? ejaculatory ducts. और ये किसके अंदर ओपन हो रही हैं? ये हो रही हैं यूरेथ्रा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. So ejaculatory ducts, these are 2 tubes and इनकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. हर जो एक ट्यूब है वो 2 डक्ट्स के मिलने से बनी है. फर्स्ट वन इज ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड सेकेंड इज डक्ट वास डेफरेंस और द डेफरेंस डक्ट. In the example you look that the ejaculatory ducts pass through the prostate gland and then they will join the urethra. Which urethra? Prostatic urethra. There are 3 parts of the urethra, but the ejaculatory duct join the prostatic urethra. And what is the function of these ducts? These ducts carry seminal fluid and spermatozoa to the urethra. This is the function कि वो seminal fluid को और spermatozoa को urethra में लेके जाएंगे. Next one is prostate gland. In this diagram you can see the yellow marked gland organ is prostate gland. It is a gland, so it will secrete the secretions, right? Prostatic secretions. Then you can see in front of the prostate gland there is pubic bone or the symphysis pubis and behind is the rectum. So the prostate gland lies in the pelvic cavity and it is present in front of the rectum and behind the symphysis pubis. Now this prostate gland surround the first part of urethra and prostate gland में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दे फर्स्ट जो बाहर की जो लेयर होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है. सेकंड स्मूथ मसल्स होते हैं और थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो कि ग्लैंडुलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. नाउ क्या फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का? प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है ए थिन मिल्की फ्लूइड जो कि 30% ऑफ सीमेन में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100% सीमेन है तो उसमें से 30% सीमेन किसका बना है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड का.
और ये सीक्रेट करता है थिन मिल्की फ्लूइड, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मिल्की टाइप। देन ये जो प्रोस्टेटिक सीक्रीशंस हैं इनमें एक क्लॉटिंग एंजाइम होती है जो कि सीमेन को थिक कर देती है, ताकि जो सीमेन है वो सर्विक्स में लॉन्ग टाइम के लिए रहे और जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चांसेस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाए। देन यूरेथ्रा, it is a common pathway for the flow of urine and semen. As you all know, in the males, urethra is a pathway for the flow of urine also and pathway for the flow of semen also. It is 19 to 20 centimeter long and it has three parts. First one is prostatic, second one is membranous and third one is spongious or the penile urethra. जो ये इमेज है इसमें आप देख रहे हो यूरेथ्रा, इसमें 3 कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। जो आपका ब्लू कलर है दैट इज़ शोइंग द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके बाद ग्रीन जो है दैट इज़ शोइंग द मेम्ब्रेनस, और जो उसके बाद है नेक्स्ट रेड इन कलर दैट इज़ द बल्बोअस और द पिनाइल। नाउ जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो सबसे, जो ब्लैडर का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वहीं पे ही शुरू हो जाता है और वो प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा कवर कर लेता है। इट मीन्स द यूरेथ्रा विच इज़ पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये सबसे छोटा और सबसे नैरो वाला, मतलब बिल बहुत ही पतला सा होता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द नैरोस्ट पार्ट and it extends from the prostate gland to the bulb of the penis. So we will discuss about this bulb of the penis in the later slides, but membranous is very shortest and narrow part and it extends from the prostate gland to the bulb of the penis. Now penile urethra or spongious, penis has erectile tissue, ठीक है, 2 इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है पेनिस। जो उसका एक्चुअली बॉडी होता है वो 2 इरेक्टाइल टिश्यू का बना है, उसमें होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा। तो जो स्पॉन्जियस और जो पिनाइल यूरेथ्रा है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास होके हुए जाता है, और ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है दैट विल टर्मिनेट एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस इन द ग्लैंस पेनिस। मतलब कि ये जो पिनाइल यूरेथ्रा वाला पोर्शन है दैट विल ओपन इन द पेनिस एट द ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। आई विल शो यू द एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज पेनिस। पेनिस हैज 3 parts, root, body and the glans. Now in this image you can see glans, right? तो जो यूरेथ्रा है देखो दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से होते हुए पूरा कहाँ तक आ रहा है, ग्लैंस तक, ठीक है। जो उसका पिनाइल यूरेथ्रा होता है वो कहाँ पे लास्ट में जाके एक्सटीरियरली कहाँ पे ओपन होता है, ग्लैंस पेनिस में, और किस रूप में, यूरेथ्रल मेटस के रूप में। नाउ रूट, रूट सबसे प्रॉक्सिमल मतलब सबसे पास वाला पार्ट है एंड फिक्स पार्ट है पेनिस का। इट लाइज इन द पेरिनियम एंड रूट इज नॉट विजिबल एक्सटर्नली। एक्सटर्नली इफ यू वांट टू observe the root of the penis, it will not be visible because it is lying in the perineum. It is made up of 3 erectile tissue. रूट जो होता है वो 3 इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, लेफ्ट एंड राइट क्रूरा एंड द बल्ब, और 2 मसल्स का बना होता है। देन इज बॉडी, जो फ्री पार्ट है पेनिस का, ठीक है, ये रूट और ग्लैंड्स के बीच में होता है। This is the part which is visible externally. It is suspended from the pubis symphysis. इसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, ठीक है। 2 तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी जो रूट है उसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू हैं, 2 क्रूरा एंड 1 बल्ब। आगे जाके ये जो क्रूरा वाला होता है जो कि लेटरली है, जो कि बाहर की तरफ है, ये बन जाता है कॉर्पस कैवर्नोसा, और जो बल्ब होता है वो बन जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम।
So in the root there are 2 erectile tissues of crura and 1 erectile tissue of bulb. In the body, these crura will form into the corpus cavernosa and the bulb will form into the corpus spongiosum, and this corpus spongiosum will extend further to form the glans penis. Now the glans, the most distal part होता है, it is conical in shape. It is formed by the expansion of the corpus spongiosum. See, glans is formed by the extension of the corpus spongiosum. This contain, ग्लैंस में क्या होता है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस मियटस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस. नाउ just above the glans there is a skin which is folded and it form a double layer called foreskin or prepuce. See in the diagram, this is the foreskin. Okay, there the skin is covering the penis. The skin is covering the penis and one portion of the skin is shaft and the other portion is the foreskin. The double layer of skin is called the foreskin. And then there is the glans and then there is the urethral meatus or the external urethral orifice. Now vasculature. The penis receives the arterial supply from dorsal artery, deep artery और bulbourethral artery. And ये जो तीनों आर्टरी हैं वो किसके ब्रांचेस हैं, इंटरनल ड्यूडनल आर्टरी के. जो आपकी वीन्स होती हैं वो कहाँ पे ड्रेन करती हैं, लास्ट में जाके इंटरनल ड्यूडनल एंड इंटरनल ईलिक वेन्स में. नाउ क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है तो जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, हमने इरेक्टाइल टिश्यू पढ़ा है जो कि रूट में भी होते हैं बॉडी में भी होते हैं. ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं दे विल फिल विद द ब्लड एंड देयर विल बी आर्टीरियल डायलेशन, आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी एंड द वीनो कंस्ट्रिक्शन. ओके, एंड दिस विल कॉज द इरेक्शन ऑफ द पेनिस. So in today's anatomy and physiology class, we discussed about the male reproductive system parts, in which we discussed about ejaculatory duct, prostate gland, urethra and the penis. Thank you so much.